Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
बोलिए बोलिए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now, Abhi. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Jai Radha Madhava Kunj Bihari Jai Radha Madhava Kunj Bihari Hari Haro Gopinana Balava Girvadhari Hari
जय गोपी गानवाला गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा मन धारी यमुना तीरा मन धारी जय राम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शक्ति डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका नाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरापुरी धाम की श्री द्वारकापुरी धाम की श्री नवदीप धाम मायापुर की श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की तुलसी देवी भक्ति देवी की श्रीमती राधा रानी की श्री श्री राधा माधव भगवान की श्री श्री गौरताई भगवान की श्री श्री जगन्नाथ भगवान की सुभद्रा महारानी की बलदेव महाराज की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की निताई गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Gurang जय शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यासां ततो जायो मुदीर्ये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन चंडीगढ़ की ओर से, इस्कॉन खन्ना की ओर से आप सभी भक्तों का आज के इस रविवार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। स्वागत करते हैं आपका। अभी हम कीर्तन कर रहे थे, तो अब थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे हरि नाम पर। तो आज का जो श्लोक मैंने दिया है, प्रभु जी से तो डिस्कस किया था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे, पर मेरे को ये जरा बेटर लगा उससे। महामंत्र जो है हमारा, मंत्र को जो हम उच्चारण करते हैं तो किस तरीके से हमें उच्चारण करना चाहिए। ये कि ऐसा वृत्तांत है जिसमें कि मंत्र का उच्चारण गलत किया गया और उसके रिजल्ट्स गलत आ गए। तो हम तो डेली मंत्र जपते हैं, हाल तो एक ही मंत्र है, परंतु उसमें भी अगर हम थोड़ी सी भी भूल करेंगे, थोड़ी सी गलती करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स हमें जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होंगे। तो ये मैं भागवतम के 6ठे स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसका शीर्षक है वृत्रासुर का आविर्भाव। वृत्रासुर के बारे में जानते हैं आप? कौन कौन जानता है? 1 और 2 3 बस। तो आविर्भाव, वृत्रासुर कौन था? मतलब हाँ, राक्षस, असुर था। हाँ, असुर था। राक्षस और असुर में फर्क है। राक्षस जो हैं वो मांस खाते हैं, मनुष्य का मांस खाते हैं, खून पीते हैं, दांत बाहर निकले हैं, वो जो है राक्षस, भयंकर शक्ल देखने में। असुर जो है वो हमारे जैसे ही होते हैं, पहचान नहीं कर सकते। 2 शब्द हैं, सुर और असुर। सुर क्या होता है? जैसे प्रभु जी मृदंग बजा रहे थे, सुर में था ये। हाँ, कीर्तन बढ़िया हो रहा था। हारमोनियम बजा रहे हैं, सुर में था। सुर में होता तो बढ़िया होता है कीर्तन। सुर बाकी किसको कहते हैं? देवताओं को भी सुर कहते हैं। तो सुर जो है देवता है, जो देवता नहीं है वो क्या है? असुर। तो देवताओं की क्या पहचान है? देवताओं की क्या पहचान है? किसको हम देवता कहेंगे? जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें हम देवता कहेंगे या सुर कहेंगे। जो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे वो क्या है? असुर हैं। तो अगर हमारे घर में हमारे बच्चे आज्ञा का पालन नहीं करते वो क्या हुए? क्यों? हमारे बच्चे नहीं मानते ना, तो वो असुर हैं। हम उन्हें सुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं पर तो नहीं मान रहे, तो क्या करेंगे? अब सहना पड़ेगा उनको। ठीक है, बुरा तो नहीं मान रहे। हमें अपनी पहचान पता लग रही है ना भाई, यानी कि नहीं हम कहते हैं ये तो हमारा बच्चा ठीक है, इसका जो इसके संग जो है ना वो है गलत, उसके संग ये खराब हो गया, ये बिल्कुल ठीक था। तो ऐसा नहीं है। वो उसके घर वाले भी यही कहते हैं कि इसके कारण ये खराब हो गया। तो ये सारा एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन चलते रहेंगे, परंतु हम उसको असुर से सुर नहीं बना सके। तो बनाना है। तो ये नहीं कि ये एक असुर था, कि भयंकर असुर। और किस कारणों से इसका आविर्भाव, यहाँ पर लिखा है आविर्भाव। आविर्भाव जनरली हम वैष्णव के बारे में शब्द यूज करते हैं, आविर्भाव तिरोभाव, कि ये हमारे वैष्णव हैं प्रभुपाद जी, इनका आविर्भाव हुआ 1896 में आविर्भाव, और हमारे जो वैष्णव हैं उनका आविर्भाव। तो इनका भी आविर्भाव लिखा गया है। इसका मतलब ये असुर के रूप में क्या था? सुर था, देवता था। तो ये अगर आपने पढ़ा है भागवतम में तो बहुत अच्छा वृत्तांत है इनका,
तो युद्ध हो रहा है इंद्र का और इसका वृत्रासुर का, और वृत्रासुर उसे भागवतम का संदेश दे रहा है। हम भी थोड़ा पढ़ते हैं उसमें। तो ये कथा है। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक आपके पास आप हो जाएगा आपके मोबाइल में? हाँ, 6-9-11 में श्लोक अगर है आपके पास तो फिर तो ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। मंत्र गलत बोलने से क्या एक्शन हो गया और कितना बड़ा वो यानी कि हुआ, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम अपने मंत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे भी हम जो मंत्र बोलते हैं वो कितना ध्यान से हमें जपना चाहिए उसको, ताकि हमें असली रिजल्ट हमें प्राप्त हो। फिर थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी होगा चर्चा। जल्दी तो नहीं जाने की? प्रसाद तो है यहाँ पे, है नहीं? हमारे दोनों को बीच में जाना है। 10 मिनट के लिए जाना, यही जाना साथ ही। हाँ 6 9 11। हाँ ठीक है, मिल गया। मिल गया जी सबको? यस, यू गॉट इट। हाँ 6-9-11। हत पुत्र ततस्त्वष्टा जुहाव इंद्राय शत्रवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरं जहि विद्विषम्। हत्पुत्र ततस्त्वष्टा जुहाव इंद्राय शत्रुवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरं जहि विद्विषम्। हत्पुत्र ततस्त्वष्टा जुहाव इंद्राय शत्रुवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरं जहि विद्विषम्। आप रिपीट करो। जुहावेन्द्राय शत्रुवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरं जहि विद्विषाम्। तत्पुत्र ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रुवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरं जहि विद्विषाम्। हत्पुत्र ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रुवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरं जहि विद्विषाम्। माता जी बोलो बोलो। बस
ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं इसका। ठीक है, पढ़ना है और बोल रहे हैं। विश्व रूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किया। उसने अग्नि में यह उच्चारण करके आहुति की, हे इंद्र के शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। विश्व रूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किया। उसने अग्नि में यह उच्चारण करके आहुति की, हे इंद्र के शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो। तात्पर्य ही डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद की त्वष्टा के द्वारा उच्चरित मंत्र में कुछ त्रुटि रह गई थी, क्योंकि उसने अल्प काल में के बजाय दीर्घ काल तक उच्चारण किया, जिससे मंत्र का अर्थ बदल गया। त्वष्टा इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण करना चाहता था, जिसका अर्थ है हे इंद्र के शत्रु। इस मंत्र में इंद्र शब्द कारक षष्ठी में आया है, अतः इंद्र शत्रु में तत्पुरुष समास हुआ। दुर्भाग्यवश त्वष्टा ने इस मंत्र को देर तक उच्चारण किया, जिससे इसका अर्थ इंद्र के शत्रु से बदलकर इंद्र जो शत्रु है हो गया। फलस्वरूप इंद्र का शत्रु न प्रकट होकर वृत्रासुर का शरीर प्रकट हुआ, जिसका शत्रु इंद्र था। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स अग्रजातं सहगण रघुनाथ विंतं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरते विषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो विश्व रूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किया। तो विश्व रूप के बारे में यहाँ इस आया तात्पर्य इसमें अपने अनुवाद में, विश्व रूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किया। तो ये विश्व रूप जो है उसके पिता हैं त्वष्टा। तो विश्व रूप का वध किया किसने? इंद्र ने। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि उनके पिता अगर मेरे पुत्र को भी मारेगा तो नेचुरली मेरे को दुख होगा, तो मैं उसका फिर किसी भी तरीके से बदला लेने का प्रयास करेंगे, उसको मारकर
उसको नुकसान पहुंचाकर। तो अब ये विश्व रूप जो है त्वष्टा के पुत्र हैं, और इंद्र ने क्यों इनका वध किया, इसके बारे में पहले जानने का प्रयास करेंगे कि इंद्र जो है इसका विश्व रूप का क्यों वध किया। तो ये एक, अब हम भागवतम में पीछे चलेंगे, कथा पीछे है, इसमें ज़्यादातर आज कथा ही है, इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलॉसफी कम है। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र देवता जो हैं ये अपने स्वर्ग में विराजमान थे, अपने आसन पे विराजमान थे, और इनके सामने जो है नर्तियाँ नृत्य कर रही थी, अपने भोग विलास में ये व्यस्त थे, इस तरीके से आनंद ले रहे थे स्वर्ग का। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, देखते कि अपने इनके गुरु महाराज, देवताओं के गुरु महाराज कौन है, बृहस्पति जी। बृहस्पति जो हैं वो प्रवेश किया उन्होंने इनके दरबार में। तो ये इतने मदान थे, आनंद में इतने डूबे हुए थे कि इनको अपने गुरु का एहसास हो गया, देख लिया इन्होंने, पर देख कर भी इग्नोर कर दिया। यानी कि हम कोई आएगा तो हम देख तो लेते ही हैं, ये तो है नहीं, आंखें काम करती हैं और पूरा रोशनी हो तो दिख जाता है। तो अब इन्होंने इग्नोर कर दिया। अब गुरु महाराज का हमारा कर्तव्य है, पर्टिकुलरली गुरु महाराज, कोई भी हमारे घर में आएगा तो हमें स्वागतार्थ उनका खड़े होना है, उनको प्रणाम करना है, उनको आसन प्रदान करना है, उनको कुछ नहीं है तो कम से कम पानी जरूर पूछना है, तो उनको आसन देकर बिठाना है। तो ये हमारा शिष्टाचार है, शिष्टाचार है। तो अब इंद्र के गुरु, और फिर गुरु का जो है वो तो स्थान बहुत ऊंचा है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति तो भी, इस गुरु के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। और गुरु जो है वो, अगर गुरु से हम आशीर्वाद नहीं लेते, गुरु की शरण में नहीं जाते, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो नहीं, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु की शरण में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और गुरु का निरादर करना जो है वो वैष्णव अपराध है। तो गुरु ने जब देखा कि ये अपने आनंद में मस्त है, कोई परवाह नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। गुरु के दर्शन करने मात्र या संत पुरुष के दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर गुरु का निरादर हुआ है, तो गुरु ने कुछ कहा नहीं है, चले गए, शांति से चले गए। परंतु उनके जाते ही क्या हुआ, उनका जो ऐश्वर्य था, जो सारा कुछ उनका जो शौर्य था, सब समाप्त हो गया। इमीडिएटली जो असुर थे वो शुक्राचार्य के थे शिष्य, उन्होंने शुक्र गुरु की अपने प्रसन्न किया अपनी सेवा से, और गुरु उनके प्रसन्न हुए तो उन्होंने इंद्र के राज्य को यानी कि कैप्चर कर लिया। देखिए गुरु का कितना, भागवत में पर स्पेशल लिखा हुआ ही है कि शुक्राचार्य के जो शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया, और गुरु की प्रसन्नता के कारण वो स्वर्ग के राज्य को जो है जीत सके। तो जीत लिया, अब जीत गए तो इंद्र जी सड़क पे आ गए। उनको याद आया भी मैंने तो गुरु की अवज्ञा की थी, खोजा, उन्हें काफी खोजा, परंतु गुरु नहीं मिले। गुरु अपने लीला करते हैं, फिर भाई इसको जरा लेसन पता लगना चाहिए, गुरु की वैल्यू, ठीक है ना। तो गुरु जो है, भगवान कहते हैं गुरु जो है, ही इज माई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान जो कुछ बोलना चाहते हैं वो जो है, हमारा स्पिरिचुअल मास्टर स्पीक्स थ्रू हिम, यानी कि वो गुरु के माध्यम से बोलते हैं। वो भगवान की वाणी ही होती है जो गुरु बोल रहे हैं। और गुरु को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना एक समान है। गुरु, अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया, नहीं मिले, तो अल्टीमेटली कैप्चर किया राज्य असुर ने।
और ये सड़क पे हैं, तो ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को तो मालूम था कि इन्होंने गुरु का निरादर किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको डांटा भी कि तुमने इस तरीके से अपने गुरु का निरादर किया है, तो गुरु अब अदृश्य हो गए हैं, तो तुम ऐसा करो, फॉर द टाइम बिंग तुम त्वष्टा के पुत्र जो है विश्व रूप, छोटे बच्चे थे 20-25 साल 30 साल के, उसके पास जाओ, उसको अपना पुरोहित बना लो। जितनी देर आपके गुरु जो दोबारा वापस नहीं आते उतनी देर तुम उसको अपना पुरोहित बना लो, और वो तुम्हारे लिए यज्ञ करेगा, लर्नड है, वेदों का ज्ञान है, तो उससे तुम्हारी जो खोई हुई ख्याति है वो दोबारा प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने त्वष्टा से मिले, उनके पुत्र छोटा था बच्चा, तो वो कहता आप बहुत उच्च पदवी पर हैं, मैं आपका पुरोहित कैसे बन सकता हूँ, परंतु फिर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ ठीक है, बन गया वो। तो अब वो यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ करते असुर जो उसका त्वष्टा था, उसकी जो पत्नी थी, इसकी विश्वरूप की माता, वो आसुरिक परिवार से थी। तो इस तरीके से अब जो विश्वरूप था उसका थोड़ा आकर्षण और इंटरेस्ट जो था वो अपनी माता की तरफ भी था। अब जैसे ही यज्ञ कर रहे थे, आहुतियां दे रहे थे, तो इंद्र के लिए जो आहुति दे रहे थे वो 3 आहुतियां इंद्र के लिए दे रहे थे, और चौथी आहुति जो है चुपके से अपनी माता के लिए वो दे रहे थे। नेचुरली हमें सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, हमारे जो माता है, अगर उसको हम कोई कर रहे हैं काम इतनी भीड़ में, अब कोई किसी माता को बोला जाए, माता जो सबसे अच्छा बच्चा तेरे को लगता है उसको तो ये टॉफी दे दे, तो बच्चा उसका जितना मर्जी गंदा हो, सबसे जो पहले उसको वो ये स्वीट देगी भी, हाँ ये मेरा सबसे अच्छा है। नेचुरली अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। तो वो माता को दे रहा था, तो इंद्र को पता लगा, तो इंद्र ने क्या किया, उसके 3 सिर थे, उसके 3 सिर काट दिए। अब ब्राह्मण था तो ब्रह्म दोष लग गया, ब्राह्मण का मारा उन्होंने, ब्रह्म का दोष लग गया। तो अब इंद्र भी इसलिए प्रायश्चित कर रहा है कि मेरे से गलती हो गई है, तो उसने क्या किया, 1 साल प्रायश्चित किया, और उसके बाद ब्रह्म दोष जो है वो इतने आसानी से समाप्त नहीं होता। उसने अपने जो पाप कर्म किए, ब्राह्मण की हत्या के उसके 4 विवाह किए, 4 पापों को, अपने पापों को 4 भागों में विभाजित किया, 4 जगह उसको उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किस किस को डिस्ट्रीब्यूट किया? हाँ, एक हाँ पहला भाग उन्होंने किया पृथ्वी को। पृथ्वी जो थी, उन्होंने कहा कि तुम अगर मेरा ये पाप कर्म का जो भाग है 1/4 ले लोगे ब्रह्म हत्या का, तो ब्रह्म हत्या का अगर 1/4 पार्ट ले लोगे, तो उसके बदले में तुम्हें ये फल प्राप्त होंगे कि तुम्हारा जो मरुस्थल है वो ऑटोमेटिकली, जो खड्डे हैं वो ऑटोमेटिकली जमीन के भर जाएंगे, और वहां भी मरुस्थल में भी पानी प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से उनको एक यानी कि ये फल दिया, इसके बदले में तुम्हारे जो यानी कि तुम मेरा ये पाप कर्म ले लो। तो इसलिए उन्होंने खड्डे जो थे पृथ्वी में या मरुस्थल जगह है, वो उसके पाप कर्मों का फल है, जिसके कारण पृथ्वी पर हमारे को ये स्थान मिला जहाँ वेजिटेशन नहीं होता। और दूसरा उन्होंने फल दिया अपना वृक्ष को उन्होंने फल दिया कि ठीक है, तुम मेरा ये पाप कर्म ले लोगे, तो तुम्हारी जो अगर टहनियाँ काट दी जाएंगी तो तुम्हारा उसको पत्ते आ जाएंगे और तुम्हारा वृक्ष में कोई हानि नहीं होगी। और उसके बदले में उन्होंने वृक्ष को जो पाप लगा उसका एक पानी, अब वृक्ष के फल लगते हैं, फल तो हम खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, वृक्ष के तने से एक पानी निकलता है रसा सा, तो वो जहरीला है, उसको नहीं हमें कंज्यूम करना है। तो इससे वो पाप कर्म का फल है जो वृक्ष से प्राप्त होता है हमें,
तो दूसरा उन्होंने वृक्ष को दिया, वृक्ष ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मेरी प्रूनिंग होती है, प्रूनिंग होकर पत्ते दोबारा आ जाएंगे तो मैं वृक्ष का पूरा 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 फल मिलेंगे और सारा। तीसरा उन्होंने जो दिया वो पानी को दिया, पानी को कि अगर कोई भी चीज़ पानी में डाली जाएगी तो उसका आप जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा, परंतु उसके बदले में उन्होंने जो पाप कर्म है बुलबुले निकलते हैं उसमें से और गंदगी जो है रह जाती है पानी में, वो अगर हम उसको हटा लेंगे और वहाँ से पानी लेंगे या भरेंगे या पिएंगे तो वो पानी स्वच्छ है, तो ये भी उसका पाप कर्म मिला। और चौथा जो है स्त्रियों ने स्वीकार किया, स्त्रियों ने स्वीकार किया कि इसलिए उसको पाप कर्म के कारण उनको जो 3-4 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो आएंगे, अपवित्र रहेंगी, परंतु उनको एक बेनिफिट ये मिला कि वो गर्भवती समय में भी वो संभोग कर सकेंगे। तो ये उनको 4 जगह उन्होंने बांट दिया। अब उसका वध किया, इंद्र तो शांत हो गया, भाई ठीक है मैंने बांट दिया, अपने पाप कर्म मुक्त हो गया, प्रायश्चित भी कर लिया, परंतु उनके पिता जिसका बेटा मार दिया है वो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं किसको मारने के लिए, इंद्र को मारने के लिए। अब इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया तो अब मंत्रों का जब उच्चारण कर रहे हैं वो उन्होंने कुछ गलत बोल दिया। इंद्र का शत्रु जो है वो इंद्र का वध कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अब मेरी आप में शत्रुता है, लड़ाई हो रही है तो नुकसान बराबर का हो सकता है, आप मेरे को भी मार सकते हैं, मैं आपको मार सकता हूँ, ये तो श्योर नहीं है ना भाई, ये नहीं कि हमेशा मैं ही मारूंगा आपको, आप ही मरेंगे, नहीं। तो इस तरीके से ये इसका शत्रु तो हो गया, परंतु वो इंद्र का वध कर सकेगा नहीं, ये मंत्रों में गलत उच्चारण करने वो इंद्र का शत्रु बना। वो शत्रु कौन बना, वो वृत्रासुर बना, वृत्रासुर। तो इसकी अब पास्ट कथा चलती है हमारी। वृत्रासुर था कौन, वृत्रासुर अभी यानी कि इसमें अब उन्होंने मंत्र बोला तो वृत्रासुर आज यहाँ पर आविर्भाव हो गया उसका। तो ये कौन थे, तो ये भी भागवतम की कथा है, राजा चित्रकेतु की कथा आपने जानी होगी, पढ़ी है। तो राजा चित्रकेतु एक राजा हुए हैं, उनके बहुत रानियां थी, भागवतम में तो 1 करोड़ लिखा हुआ है, तो मान सकते हैं 1 करोड़। तो इस तरीके से वो रानियां जो थी कोई किसी के भी संतान नहीं हुई। तो राजा जब राजा इतनी बड़ा साम्राज्य है, इतना ऐश्वर्य है, तो उसको जब आगे नजर आ रहा है कि भोग करने वाला कोई नहीं है तो वो इसकी क्या करेगा, व्हाट ही विल डू। तो बहुत चिंतित थे। ठीक है यार भाई, ठीक है ठीक है। वो बात सुनो, हरि बोल, वो बुक्स आपके जो है वो कल भेज दूंगा, पवन जी है ना, पढ़ी है वो भेज दूंगा, बुक्स पढ़ी है वैसे और जो पढ़ी है वो दे दो, फिर मैं ले जाऊंगा। लेकिन यार मैं भेज दूंगा, चंडीगढ़ भेज दूंगा, परसों आ जाएगी। कब भेजेंगे, कल परसों आ जाएगी, भेज दूंगा। चलो देख लेना, 7 बुक्स है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो अब राजा चित्रकेतु के अपने थे, तो उसको अब संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई तो चिंताग्रस्त थे बहुत ज्यादा, इतने बड़े साम्राज्य का हम करेंगे क्या, संतान तो होनी चाहिए ना, हम शादी करते हैं, बच्चा ये होना चाहिए, चलो हमारा वंश चलेगा, हमारी जो संपत्ति है वो अपना उसका भोग करेगा, उसका आगे चलेगा, फिर वो अपने बच्चे को दे देगा। ये हमारे कड़ी चल रही है, श्रृंखला चल रही है। तो अब वहां पर उनके पास आए एक अंगीरा ऋषि। अंगीरा ऋषि आए उनके महल में, तो उन्हें कुछ बताना चाहते थे, परंतु उस समय व्यक्ति जो है जहां उसकी फंसी हुई है कुंडी तो व्यक्ति उस तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, उस तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, यानी कि उनका अब आसक्ति कहाँ थी, पुत्र में थी या अपने परिवार में थी, बेटे में थी कि बच्चा होना चाहिए, इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा। अब अंगीरा ऋषि उन्हें कुछ देना चाहते थे, कुछ प्रवचन करना चाहते थे आत्म साक्षात्कार के बारे में, वो ही वॉज नॉट विलिंग टू लिसन। तो उन्होंने
राजा ने बताया कि मेरी परेशानी का कारण है मेरा संतान कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि राजा, तो उन्होंने इंदिरा ऋषि ने सोचा कि इसको पहले इस अटैचमेंट जो इसकी है उससे इसको मुक्त करना पड़ेगा, फिर ये लाइन पर आएगा। तो उन्होंने कहा, राजा तुम्हें संतान प्राप्त होगी, परंतु वो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बनेगी। संतान होगी परंतु क्या होगा? हर्ष, हर्ष मैंने खुशी, शोक मैंने दुख। तो सुख और दुख दोनों का कारण बनेगी। वैसे तो ये सही है, संतानें हमेशा सुख नहीं दुख भी साथ में चलता है, सुख और दुख दोनों चलते हैं। तो राजा ने कहा, चित्रकेतु ने सोचा, अभी ठीक है, क्या है, संतान होगी ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तो संतान है नहीं, इतनी सारी रानियां होने के बावजूद संतान नहीं है, संतान हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, लड़का कोई वो निकलेगा, नालायक निकलेगा या कोई और होगा, चलो कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा, संभाल लेगा, राज्य चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने जी अब उसको वर दिया। 1 साल में एक बच्चा हुआ सबसे बड़ी रानी के। सबसे बड़ी रानी के जब बच्चा हुआ तो जो चीज हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, बड़ा ज्यादा, यानी कि हमारे इंटेंस डिजायर हैं, वो डिजायर जब पूरी होती है तो उसमें बहुत ज्यादा गहरी अटैचमेंट हो जाती है। होता है ना ऐसा, कुछ बहुत मुश्किल से जो चीज प्राप्त हुई है और वो हमें प्राप्त हो जाए तो हम उसको बड़ा संभाल के रखेंगे भी हाँ भाई ये कि दोबारा ना गुम हो जाए या दोबारा ना इसका नुकसान ना हो जाए। तो राजा को जब वो पुत्र प्राप्त हुआ, इतनी उसके बाद इंटेंस डिजायर के बाद आज प्राप्त हुआ, तो उसकी अटैचमेंट जो है उस पुत्र में इतनी गहरी होगी कि वो सारी की सारी अपनी जितनी रानियां थी उनको निकट करके आपने सिर्फ एक रानी जिसने पुत्र को जन्म दिया था उस पुत्र में, और पुत्र के कारण उसकी माता में उसकी अटैचमेंट हो गई। बाकी निगलेक्टेड रानियां, अब रानियां जो हैं ईर्ष्या इतनी प्रबल होती है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि सांप भी ईर्ष्यालु होता है, सांप भी ईर्ष्यालु होता है। सांप को कंट्रोल किया जा सकता है मंत्रों द्वारा, जो वो सांप सवेरे वगैरह होते हैं वो कुछ अपने बीन वगैरह पे जाके उनको कोई तरीका हो तो उससे वो कंट्रोल कर सकते हैं, कितना भी जहरीला सांप हो वो कंट्रोल कर लेंगे। परंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और कब वो नुकसान पहुंचाएगा इसके बारे में हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भी कब नुकसान पहुंचा देगा वो। अब वो जो रानियां थी, भगवत गीता का श्लोक आता है 2.61-62 में, पढ़ा आपने? क्रोध क्यों आता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधत अभिजायते, क्रोधत भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमात्, स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो यहाँ पर ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, अब लगातार वो ध्या रहे थे राजा चित्रकेतु अपने बच्चे के बारे में ध्याय, तो और उसमें संग उत्पन्न हो गया। संग करने की हमेशा इच्छा रही कि वो मेरे सामने रहना चाहिए। ध्याय तो विषय संग ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधात अभिजायते। अब उस संग के कारण जो दूसरी रानी है वो क्रोधित हो गई, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, राजा उनसे विमुख हो गया है। क्रोधत अभिजायते, क्रोधत भवति सम्मोहा, अब दोनों में टसल हो रही है। राजा कह रहे कि इससे मोह है मेरे को, मैं इसके साथ अटैच हूं, रानियां जो कह रही हैं वो भी राजा से हमारी अटैचमेंट, राजा हमारे मोह चल रहा है। स्मृति विभ्रात बुद्धि नाशो, और उससे स्मृति जो है हमारी बुद्धि जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाती है, हमारी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, और बुद्धि का नाश हो जाता है। पागल व्यक्ति का क्या पहचान होती है? बुद्धि का, यानी कि होता नहीं ना उसके बुद्धि, जो पागल जिसको हम कहते हैं, यानी नॉट बीन यूजिंग हिज ब्रेन, यानी कि ब्रेन जो है असेंट्रिक होता है उसका, यानी कि सेंटर में नहीं है, तो ही कैन नॉट थिंक प्रॉपरली। तो ये जो है स्मृति, जब हमारी मेमोरी हमारी लॉस्ट हो गई, कल में था अखबार में या परसों में था, तो एक व्यक्ति को
48 साल बाद, आपने खबर पड़ी होगी, 48 साल बाद वो अपने घर वापस आया ड्यू टू लॉस्ट मेमोरी। 48 साल बाद उसको यानी कि द्वारा उसका एक्सीडेंट हुआ, सिर में चोट लगी। फिल्मों में देखते हैं ये, कई बार देखो तो ये एक्चुअली इट हैज हैपेंड। मैंने अखबार में कल बस से पढ़ा अखबार में, तो वो उसकी मेमोरी वापस आई। देन ही, ये हिमाचल का ही था कहीं किसी उसका गांव का, 48 साल बाद देखो, तो 48 साल उसको नहीं पता। तो यानी कि स्मृति, जब हमारी मेमोरी लॉस्ट हो गई तो हमें भूल गए कि ये राजा, ये उसकी रानी, ये बच्चा और ये महल, सब कुछ अब सिर्फ एकमात्र अपना लक्ष्य नजर आ रहा है कि राजा हमारा है और हमें इसे प्राप्त करना है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब क्या किया उन्होंने? हाँ, बच्चे को मार डाला। जस्ट सी क्रुएलिटी। ईर्ष्या के कारण इस लेवल तक हम पहुंच गए कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, उनको सिर्फ राजा से अपना रिलेशन नजर आ रहा था। उसके कारण उन्होंने कुछ भी करने के लिए तैयार और बच्चे का वध कर दिया। तो बच्चे का वध कर दिया। राजा अब इतना अटैच्ड, जो चीज हमें मुश्किल से मिली है वो चली गई, तो राजा जो है बहुत पश्चाताप कर रहा है। और उसके लिए यानी कि यहाँ तक कि उसने अपना जो शरीर को छोड़ने के लिए भी, यानी कि ही वाज प्लानिंग टू कमिट सुसाइड, भाई अपना शरीर त्याग करो, अगर पुत्र चला गया तो मेरा भी जीने का कोई पर्पस नहीं रह जाता, तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। अब वहां पर पहुंच गए कौन? और नारद मुनि और अंगीरा ऋषि जो पहुंच गए। अब क्योंकि अंगीरा ऋषि उस समय उनको बताना चाहते थे कुछ, अब अंगीरा ऋषि और नारद जी एक्सपर्ट प्रीचर दोनों आए, क्योंकि अब जो है वो वैराग्य में है। राजा चित्रकेतु किसमें है? वैराग्य में। जब हमसे कोई चीज चली जाती है, छिन जाती है, तो फिर हमारे में वैराग्य आ जाता है। और प्रीचिंग टाइम इज द बेस्ट टाइम वेल वी आर इन वैराग्य। अगर हम वैरागी है तब हमें ज्यादा इफेक्ट होगा। तो उस समय उन्होंने, फिर नारद जी ने उन्हें प्रीचिंग की, और प्रीचिंग करके उनको रियलाइज कराया कि ये संसार जो है इसी तरीके से है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ये बच्चा जो है आपके कर्मों के कारण आपका 1 साल के लिए बेटा बना, अब कहीं और चला गया है, तो इसलिए कुछ भी अपना नहीं है। ये धन दौलत पुत्र परिजन, ये यौवन, कुछ भी अपना नहीं है। एवरीबॉडी विल गो, एवरीथिंग विल गो। तो इसलिए हमें राजा इस सब चीजों का परित्याग करो और आप आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करो। वहां पर उन्होंने अपने नारद जी ने चित्रकेतु को ज्ञान दिया, और चित्र ज्ञान देकर राजा चित्रकेतु ने सब कुछ त्याग कर दिया। राजमहल त्याग कर दिए, रानियां त्याग कर दी, सब कुछ त्याग करके वो क्या है, अब एक अवधूत की तरह, ब्राह्मण की तरह उस यात्रा कर रहे हैं। बाई एयर यात्रा कर रहे थे, तो अचानक देखा कि शिव जी पार्वती को अपने गोदी में बिठाकर आत्म साक्षात्कार के लिए प्रवचन कर रहे हैं। तो उसको सीन को देखकर उन्होंने शिव जी का कहा कि देखो कितने एलिवेटेड डिवोटी हैं भगवान शिव, कि पार्वती जी के साथ भी ये प्रवचन कर रहे हैं, और थोड़ा हंस पड़े। अब पार्वती माता ने सोचा कि ये हमारी स्थिति को देखकर हंसे हैं, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ, क्योंकि तुम्हें इतना शिष्टाचार नहीं है कि भगवान शिव के प्रति तुम उपहास कर रहे हो। तो अगर राजा चित्रकेतु चाहते तो वो श्राप दे सकते थे। भगवान शिव केवल हंसे, थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि भगवान शिव और चित्रकेतु जो है गुरु भाई हैं दोनों, अनंत देव के दोनों के शिष्य हैं। तो इस तरीके से वो, अब उनको श्राप मिला पार्वती का श्राप लेकर उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं कहा। उन्हें एक्सेप्ट किया कि ठीक है माता,
अगर मेरे कर्मों का ये फल है कि मुझे असुर रूप में प्राप्त होना है तो असुर रूप मुझे प्राप्त होगा, तो मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूं। परंतु अब ये जो है यहाँ पर ये अब सीन इकट्ठा हो रहा है कि इधर इंद्र ने किसको मार दिया, विश्वरूप को, त्वष्टा के पुत्र को मार दिया। अब त्वष्टा के पुत्र को अग्नि में से अब ये जो है असुर वो प्रकट होना है। एक ऐसा केस पहले भी हुआ था। अब इसमें उन्होंने मंत्र गलत बोला तो इंद्र को मारने वाले के बजाय इंद्र का शत्रु तो पैदा हो गया, पर इंद्र को मार सकेगा ये नहीं इसमें क्लियर हुआ। तो एक केस पहला भी था ऐसा, अग्नि से कोई और प्रकट हुआ था, मालूम है कौन प्रकट हुआ था? महाभारत। हाँ, किसने बोला तुमने? वेरी गुड, ताली बजाओ, देखो बच्चों। हाँ, तो ये भी एक कथा है कि द्रुपद कौन थे? एक राजा थे जो द्रौपदी के पिता। यस। उन्होंने गुरुकुल में द्रोण को एक फ्रेंड से उन्होंने द्रोण को आधा राज्य देने का वादा किया था, पर जब नहीं, आधा नहीं किया था। चलो बस इतना ठीक है, अब बाकी का मैं सुना देता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारे बहुत अच्छी ज्ञान है बच्चे का, बहुत ध्यान से सुनता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे, आचार्य थे, कौरवों और पांडवों के। तो ये बचपन में सहपाठी थे गुरुकुल के, द्रोणाचार्य और द्रुपद। तो बचपन में, अब स्कूल में तो कोई अमीर है कोई गरीब है, सहपाठ दोस्ती हो जाती है उसमें। जैसे भगवान कृष्ण की सुदामा जी से हो गई, सुदामा जी के लिए मित्रता थी उनमें। कोई हमारा जो है स्टेटस, कोई ये नहीं है भी ये अमीर है ये गरीब है, नहीं। वो सुदामा जी के लिए उन्होंने कितना वो किया। तो परंतु यहाँ पर द्रुपद जो है, वहाँ जब मित्रता थी तब वो आपस में बड़े वो कर रहे थे प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा, तुम जब भी जरूरत होगी मेरे पास आना, मैं तुम्हें हर मदद करूंगी, मैं राजा हूँ, ये है वो है, जो भी उन्होंने वचन किए। अब उस वचनों को लेके द्रोणाचार्य की पत्नी जो थी, क्या नाम था? अब फंस गया तो। कृपी था उनका नाम, कृपाचार्य थे। तो कृपी उनकी बहन थी, तो उनकी पत्नी थी। तो उनके जब ये अश्वत्थामा पैदा हुए तो उनके पास दूध पिलाने के लिए गाय भी नहीं थी। तो उन्होंने अपने द्रोणाचार्य से बोला कि आपके मित्र हैं, राजा हैं द्रुपद, उनसे गाय मांग के लाओ, गाय दे देंगे वो, क्या इसमें गाय देना कोई दिक्कत नहीं है। तो परंतु वहां पर जाके उन्होंने, द्रुपद ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया द्रोणाचार्य को। और गाय, कहते गाय अगर तुम ब्राह्मण के तौर पर मांगते हो तो मैं दे सकता हूँ, बाकी दोस्ती जो है वो तो बराबर वालों की होती है। तुम एक तुच्छ ब्राह्मण और मैं एक राजा, सम्राट, चक्रवर्ती राजा, तो कहते हमारे में दोस्ती नहीं है। तो राजा को बहुत बुरा लगा, उसको अपने द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा और वो वापस आ गए, घर नहीं गए, वापस जंगल में चले गए, वहीं पर अपनी कुटिया बना के रहने लग गए। और परंतु मन में अब ये जो बेइज्जती की उसने, तो उसका था। तो इतने में जब ये द्रोणाचार्य उनके बने, कौरवों के और पांडवों के गुरु बने, तो वहां पर उन्होंने गुरु दक्षिणा में अर्जुन को बोला कि तुम ना द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। तो बंदी बना के जब लाए, तो बंदी बनाया, राजा बंदी बन गया, तो उसका मतलब साम्राज्य सारा उसका बंदी बन गया, उसके जो ऐश्वर्य, जो उसका धन दौलत, सब कुछ। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, इसको छोड़ दो और इसका आधा राज्य भी इसको वापस कर दो, आधा राज्य भी वापस कर दो। तो आधा राज्य भी वापस हो गया और वो छोड़ भी दिया। तो द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं, उनका हृदय निर्मल था कि द्रुपद अब मैं तुम्हारे बराबर हो गया हूं। तो अब
जिसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाए, पकड़ के लाए, बांध के लाए उसको, आज पूरा राज्य उसका ले लिया, फिर बाद में आधा राज्य दे रहे हैं उसको, तो वो ये सहन करेगा? पर अब उसके पास ऑप्शन कोई नहीं थी, ऑप्शन नहीं थी, तो उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम बहुत मित्र हैं आपस में, तो मित्र बन के रहेंगे। परंतु द्रुपद ये चीज जो है अपने मन में वो जो ईर्ष्या थी और बैर विरोध था वो भूल नहीं सका। तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने यज्ञ किया, यज्ञ किया, उसमें से यज्ञ में से मंत्र सही बोलेंगे तो एक द्रौपदी पैदा हुई और एक दुष्टदुम्न पैदा हुआ। दुष्टदुम्न जिसने कि द्रोणाचार्य का वध किया। तो इस तरीके से ये जो है ये कथा चल रही थी। तो अब ये मंत्रों का उच्चारण जो है, ये अब जो पूरा ये बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली ये है कि वृत्रासुर का आविर्भाव क्यों हुआ। वृत्रासुर का आविर्भाव क्यों हुआ? क्योंकि अब इंद्र त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया और वृत्रासुर जो है अब युद्ध कर रहा है, युद्ध करना है। तो और ये वृत्रासुर इतना शक्तिशाली है कि किस इंद्र का जो वो होता है क्या वज्र वो भी इसको वध नहीं कर सकता, इतना शक्तिशाली था। तो फिर क्या किया इसका? हाँ क्या किया? हाँ यस यस, अभी आपने ठीक बोला। दधीची ऋषि, दधीची ऋषि जो है भगवान से ये शरण में गए कि ये तो इतना शक्तिशाली है, ये तो जिधर जाता है सब कुछ निकलता जा रहा है, इतना सारा भयंकर ये असुर है कि इसका हमें वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि तुम ऐसे करो, दधीची ऋषि के पास जाओ। इंद्र जो है बेशर्म है दधीची ऋषि का एक पहले कथा है, कथा ही सुना देते हैं आपको, कोई ज्यादा टाइम जल्दी तो नहीं है। तो एक दधीची ऋषि की एक कथा है, इनके साथ रिलेटेड, इंद्र के साथ ही है। बेसिकली जो इंद्र, ये सेम इंद्र नहीं है, ये सेम ही है। ये कथा जो दधीची ऋषि की कथा है ये सेम ही इंद्र है। वैसे डिफरेंट हम उसमें मनवंतर में पढ़ते हैं, इंद्र डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये अब दधीची ऋषि के स्वर्ग में दो अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमार हैं। तो वो उन्होंने एक बार स्वर्ग से इनके पास, दधीची ऋषि के पास आए और उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ऋषिवर हम आपसे आत्म साक्षात्कार की ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, साधु का काम है ज्ञान देना, तो आप आ जाओ। तो डेट फिक्स होगी कि इस दिन आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो अब इंद्र को पता लग गया। इंद्र ने क्या किया, उनको अश्विनी कुमारों को कुछ नहीं बोला, वो दधीची ऋषि के पास आ गए और दधीची ऋषि के पास आके इनको धमकी दी, कहते अगर तुमने उनको शिक्षा दी तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। जिस दिन डेट ऑफ एडमिशन थी उस दिन वो गए अश्विनी कुमार, तो उन्होंने कहा कि थोड़े चिंतित थे ऋषिवर। कहते क्या हुआ हुआ? कहते जी इस तरीके से इंद्र राजा आए थे और उन्होंने बोला है कि अगर तुमने उनको शिक्षा ज्ञान दिया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। कहते कोई बात नहीं, चिंता मत करो, उससे पहले हम तुम्हारा गला काट देंगे हम तुम्हारा गला काट देंगे। तो तुम उस गला जो काटेंगे वो तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। साइंस देखिए उस समय कितनी टेक्नोलॉजी वास्ट थी, आज तक कोई साइंस में है ऐसा भी जो गला कट जाए तो उसके बाद गला लगा दें? भगवान शिव ने भी गला लगाया था, किसको? राजा दक्ष का गला लगाया था, बकरे का। अपने पुत्र का गला काट दिया था उन्होंने, उनका गला, सांप का गला लगा दिया। तो आजकल कोई है डॉक्टर मिलता है ऐसा? कोई डॉक्टर है यहाँ पे जो बकरे का सिर लगा दे? अभी साइंस ने एक तरक्की कर ली है, आपको खुशखबरी देनी है। क्या तरक्की की है? हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है पशु के उससे, पर पशु सिलेक्ट किया वो कौन सा है? सुअर
अब सूअर का हृदय अगर लगेगा तो देखिए कैसी वृत्ति हो जाएगी। गंदगी खाएंगे। गंदगी खाता है, गंदगी में यानी हमारी वृत्ति भी ऐसी हो जाएगी। तो कौन कौन चाहेगा सूअर का? तो ये भी एक और की चीज है, सूअर का जो हृदय है कंपेटिबल है विद ह्यूमन बींग्स। तो इस तरीके से अब इतनी साइंस जो